So I am here to present the first section of this session. I am a authorized AI trainer and I am a certified Scrum Master. I am working as an engineering manager in Global Logic for past 15 years. So my total experience is into AI and project management. I am handling React Native and Native mobile teams, so I am into mobile development. So I'll be telling you like how AI can help you to get a job and how you can improve your LinkedIn profile through AI. आप लोग एआई के बारे में क्या जानते हो? क्या होता है एआई? कुछ भी कोई भी बेसिक नॉलेज एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फुल फॉर्म होती है। होता क्या है एआई? किसी को कुछ भी आइडिया है एआई क्या होता है? Hi everyone, my name is Dr. Yusuf and AI की basically मैं कह सकता हूँ जितने भी हमारे पास डेटा कलेक्शन है जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी कह सकते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के या फिर और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट के जो डेटा है जो कलेक्ट किए गए हैं तो उसमें एनालिसिस में काम आएगा अगर आपने मुझे फॉर एग्जांपल कोई कैंसर का पेशेंट है या फिर कोई मार्केटिंग टीम में सेल्स का लीड है या कहीं पर भी मुझे नीड है एक सर्टन थिंग्स ऑफ को एक्सट्रैक्ट करना है तो वहाँ पे एआई रेडली मतलब उस चीज को एक्सट्रैक्ट कर सकता है डेटा एनालाइज करके और एआई बहुत सारे जैसे सेल्स है सेल्स में कह सकते हैं हमारे पास 1000 क्लाइंट्स मैंने मिला उसमें से लीड जो है 10 या 15 लीड है तो 10-15 लीड में एकदम मुझे चाहिए कि ये एक्सट्रैक्ट करें तो वहाँ पे एआई आई थिंक बहुत अच्छे से उसे एक्सट्रैक्ट कर सकता है डेटा को बहुत अच्छे से एनालाइज करके मुझे रिजल्ट दे सकता है वी नीड नॉट पुश invest our strenuous efforts to extract the data. AI will help on that. Thank you. Anyone else who would like to share his or her thoughts on AI? What is AI? कोई? Hello everyone, my name is Moon. So, according to me, AI is like a supervised or unsupervised learning. Like whenever we have data, so there are two things. One is like AI is trained from like the previous data, and one is like they learn from the new data. So whenever AI is learning from the new data, they can like they do some machine learning in that, and that also enhance their knowledge or like improve them from the previous one, and how that's how they improve themselves as an AI. And from the like if we are working on new data, then we have lot of new things to manage. Like there are so much. If we are working on like we have to generate a cat image, so AI will think like if there is already a cat image, then they will learn from it and they will try to generate a new cat image. Like if I want to be a specific, like a black cat image, and it should be like from Germany or anything like that, then it's thinking about like self-thinking about machine learning and like this kind of thing, and then how they work on the AI. I think like AI is like learning from themselves, and also there is another AI that is like working on like particular data that is already in the market or already in the market. Thank you. Thank you. यार बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं। आपने देखा होगा कि एआई बहुत सालों से चल रहा है पर सडनली कोविड के बाद ना एआई एकदम बूम पे आ गया। आप देखते होगे आपकी कोई एचआर होगी वो पहले तो बहुत बेसिक ईमेल लिखती होगी आज उसका ईमेल लिख के सोचते हो यार क्या ईमेल लिख रही है होता है। या कोई एक नॉर्मल बंदा होगा पीपीटी बनाता होगा सडनली वो ऐसी पीपीटी बना देगा यार ये तो 2 घंटे पहले इसमें कुछ आता ही नहीं था 2 घंटे इसमें पीपीटी कहाँ से बना दी। होता है ऐसा हुआ है कहाँ से हो रहा है एआई से हो रहा है। ठीक है तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जहाँ पे आप भी ऐसे ईमेल्स लिख सकते हो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बूस्ट कर सकते हो। आप देखते होगे लिंक्डइन पे रोज कोई बहुत अच्छी पोस्ट डाल रहा है एक बहुत अच्छा सा विजुअल आ रहा है और ऐसे ऐसे डाटा डाल रहा है जो आप सुन के सोचते हो वाह यार इसकी इतनी नॉलेज कहाँ से आ गई। आप भी वो सब कर पाओगे आप कमेंट कर पाओगे आप पीपीटी 2 मिनट के अंदर बना पाओगे ऐसी पीपीटी जो आप सोचोगे यार ये मैं मेरे को बनाने में 2 दिन लगते थे। तो these are just the basics I'll be telling you about. So first my intro like as I've already mentioned like I'm working as an engineering manager in Global Logic. I am a AI enthusiast and I am a certified Scrum Master. I am managing the mobile teams there, so I'm into
mobile app development, both for React Native and native. And as far as my personal interest goes, I am a cricket and poker lover. So poker में भी मैं यूज करता हूँ. अगर आपको पैसे जीतने हो तो पोकर से भी AI से यूज कर सकते हैं. चलो, आज का एजेंडा रहेगा. पहली स्लाइड है व्हाट इज एआई एंड हाउ टू गेट बेस्ट यूज ऑफ इट. तो आई थिंक व्हाट इज एआई हमने मोस्टली डिस्कस कर लिया. अगला क्वेश्चन आता है, यार लोग सोच रहे हैं कि एआई का जॉब खा जाएगा क्या. सबके माइंड में है ना, किसी का कोई ओपिनियन, परसेप्शन, एआई जॉब खाएगा या नहीं खाएगा. बढ़िया चलता रहेगा. टीसीएस कैसी तो 12,000 लोग निकाल दिए. मन कर रहा था टीसीएस का, यार आज चलो 12,000 लोग निकालते हैं. अगर आप लोग आईटी इंडस्ट्री में बहुत सालों से हो तो टीसीएस को हम सरकारी कंपनी कहते थे. अगर एक बार टीसीएस में चले जाओ तो जिंदगी भर आप टीसीएस में दबाव बन के रह सकते हो. पर सडनली टीसीएस ने 12,000 लोग क्यों निकाल दिए, कोई रीजन है? तो फिर एआई की वजह से निकाला. तो एआई क्या हमारे लिए खतरा है? हाँ खतरा है. हाँ ना, कोई भी परसेप्शन, कोई ओपिनियन, कोई खतरा नहीं है. ऐसे ही 12,000 लोग निकाल दिए एक वजह से. देखो एआई खतरा है और नहीं भी. अगर आप इस एज में, जिस एज में हम रह रहे हैं, अगर आप एआई के साथ वेल वर्स हो गए तो बिल्कुल खतरा नहीं है. योर जॉब इज सिक्योर फॉर नेक्स्ट 15 इयर्स आई वुड से. लेकिन अगर आप वही मैनुअल एफर्ट करते रहे, सब कुछ करते रहे, और एक आपसे दूसरा बंदा, आप एक काम 8 घंटे में करते हो, दूसरा बंदा 8 मिनट में कर देता है, तो ऑब्वियसली कंपनी उसको रखेगी जो 8 मिनट में कर रहा है, आपको नहीं रखेगी जो 8 घंटे में कर रहा है. ठीक है. सो यू नीड टू लर्न एआई. जिस फील्ड में हम रहते हैं उस फील्ड में हमें कंटिन्यूअस लर्निंग चाहिए होती है. ठीक है. सो दैट इज व्हाई वी नीड टू लर्न एआई. एआई की एक फॉर्मल डेफिनेशन मैं आपको दिखा देता हूँ. So AI or artificial intelligence refers to the development of computer systems that can perform tasks that typically require human intelligence, such as learning, problem solving, decision making and perception. So कोविड के बाद जनरली AI इसलिए बूम पे आ गया क्योंकि अब जो हम AI यूज करते हैं वो जनरेटिव AI. जनरेटिव AI वो क्या करता है, हमारे लिए डाटा जनरेट करता है. इससे पहले जो AI चलता था वो प्रेडिक्टिव AI था. आप प्रेडिक्ट कर सकते थे, AI तब भी यूज में था. लेकिन आज जो जनरेट कर रहा है डाटा वो एक नेक्स्ट लेवल पे कर रहा है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट LLMs. किसी ने LLM का नाम सुना? क्या होते हैं LLMs? लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स. चैट जीपीटी सब यूज करते होंगे अपनी जिंदगी में. रेजिग्नेशन मेल डालना होता है, अच्छा सा मेल डालो, यार एक रेजिग्नेशन मेल अच्छा सा दे दो, दे देगा. ठीक है. चैट जीपीटी हो गया, क्लाउड हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया. अगर आपका एयरटेल का कनेक्शन है, एयरटेल आजकल परप्लेक्सिटी फ्री दे रहा है. क्लाउड बहुत अच्छा LLM है अगर आपको कोडिंग करनी है. आपके मोबाइल डेवलपमेंट का मैंने खुद यूज करा. फ्रेमवर्क मुझे 1 घंटे बना के दे देगा, जो मेरे को डेवलपर से 3 महीने लगते हैं. ठीक है. तो वी टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द LLMs हियर. विल एआई रिजल्ट इन लेऑफ्स? हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. अगर आप एआई के साथ रहोगे तो लेऑफ्स नहीं होंगे. पीछे रह जाओगे तो बिल्कुल सैड टू से, बट लेऑफ्स होंगे. अगली 5 साल में आईटी इंडस्ट्री में बेस्ट जॉब क्या है? बेस्ट जॉब है प्रॉम्प्ट इंजीनियर. सुना है किसी ने? लिंक्डइन पे देखा होगा प्रॉम्प्ट इंजीनियर की 4 आ रही है. प्रॉम्प्ट इंजीनियर दे दो जी, प्रॉम्प्ट इंजीनियर दे दो. क्या होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियर? प्रॉम्प्ट इंजीनियर, चलो प्रॉम्प्ट इंजीनियर से पहले प्रॉम्प्ट क्या होता है? चैट जीपीटी में रिक्वेस्ट डालते हैं आप. माइक ले लो यार. और माइक इंस्ट्रक्शंस. गुड. फॉर एग्जांपल मेरे को एक रिपोर्ट बनानी है कि भारत की पॉपुलेशन 2020 से 2025 तक आ गई, तो मैं एक लाइन का प्रॉम्प्ट लिख दूंगा, क्रिएट अ रिपोर्ट फॉर मी टू हैव अ सेंसस रिपोर्ट बिटवीन 2020 एंड 2025. अच्छी रिपोर्ट दे देगा? यही तो चाहिए था मुझे. अच्छी रिपोर्ट दे देगा? नहीं देगा. क्यों नहीं देगा? तो जैसा मैम ने कहा, जितना अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे ना उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा. अब लोगों को पता नहीं होता कि अच्छा प्रॉम्प्ट क्या होता है, तो मैं आपको उसके लिए शॉर्टकट दे रहा हूँ. मेरे पास प्रॉम्प्ट जनरेटर है. आपको कुछ नहीं करना, आप एक नॉर्मल प्रॉम्प्ट डालना, वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, आपको बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट क्रिएट करके दे देगा. तो मैं आपको दिखाता हूँ. एंड डोंट वरी, आई विल बी प्रोवाइडिंग दिस स्लाइड टू यू. सो आप अपने सिस्टम में अपलोड कर सकते हो वो चीज़ें. तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट जनरेटर है. चलो आप बताओ किस चीज के लिए आपको रिपोर्ट बनानी है? कोई भी एक चीज.
जेन एआई पे चलो लिखते हैं कि जेन एआई हमारी जॉब्स कैसे इफेक्ट करेगा 2025। ठीक है, सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, एंटर मारते हैं। उसने मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उसने मेरे से पर्पस पूछा है, स्कोप पूछा है, पर्सपेक्टिव पूछा है, प्रेफर्ड फॉर्मेट पूछा है, टोन एंड स्टाइल पूछा है, टारगेट ऑडियंस पूछा है, कंस्ट्रेंट्स पूछा है, एग्जांपल्स और इंस्पिरेशन पूछा है। मैं सारी चीजें भरता हूँ और उसके बाद देखते हैं मैंने जो एक लाइन का प्रॉम्प्ट भरा था और जो अब प्रॉम्प्ट आएगा वो कैसा दिखता है। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा, उसके सिर्फ आंसर्स दे रहा हूँ उसके क्वेश्चंस के। मैंने उसके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए, मैं एंटर दबाता हूँ। चलिए यार, थोड़ी किस्मत खराब है, नेट बंद हो गया, 1 मिनट वेट करते हैं। तो मैंने उस क्वेश्चन के आंसर दिए, इसने मुझे ये प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे दिया। अब आपको अगर ये प्रॉम्प्ट लिखना होता तो आपको कितना टाइम लगता है? शायद आप लिख लेते, मैं ये नहीं कह रहा आप नहीं लिख पाते, लेकिन आपको काफी दिमाग लगाना पड़ता है। मेरे ख्याल से 10-15 मिनट तो लग जाते हैं इतना परफेक्ट प्रॉम्प्ट लिखने के लिए। अब इस प्रॉम्प्ट का यूज क्या होता है, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं, मैंने चैट जीपीटी पे डाला है और वो थोड़ा सा थिंक कर रहा है और उसने मुझे रिपोर्ट दे दी है। कितना टाइम लगाया आपको रिपोर्ट बनाने में? और उसके नीचे अभी दे रहा है मेरे को, पूरा रिपोर्ट दे रहा है, सब कुछ दे रहा है जो जो मैंने मांगा था उस प्रॉम्प्ट से। उसके बाद वो मुझे बॉटम लाइन भी दे रहा है। अब ये रिपोर्ट जनरेट करने में मेरे को हार्डली 30 सेकंड लगेगा, इंटरनेट नहीं जाता था। आपको ये रिपोर्ट जनरेट करने में अगर आपको आपका बॉस बोले यार ये रिपोर्ट जनरेट कर दो कि इम्पैक्ट ऑफ जेन एआई हमारे 2025 के जॉब पे क्या होगा, तो शायद आपको 1-2 दिन लग जाते। आप वेरियस वेबसाइट्स पे जाते हैं, वेरियस रिपोर्ट देख के डाटा इकट्ठा करते हैं। ठीक है, क्या इसकी पीपीटी चाहते हो 2 मिनट के अंदर? चलो इसकी पीपीटी देखते हैं। मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे को पता भी नहीं है इस डाटा पे क्या लिखा होगा, मैंने आपके सामने पढ़ा भी नहीं। मैंने सिर्फ प्रॉम्प्ट कॉपी करा, टूल आता है गामा, नाम सुना किसी ने? गामा पीपीटी बनाने के लिए बहुत बढ़िया टूल है। जो लोग इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हैं ना, गामा का बिल्कुल यूज करते होंगे। जो प्रोफेशनल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जो होते हैं ना, आपको अच्छी अच्छी रील्स दिखती हैं, वो सारी गामा से बनती हैं। इस पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट न्यू एआई, जनरेट करता हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं करना। मैंने यहाँ डाल दिया प्रॉम्प्ट, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने जो प्रॉम्प्ट जनरेट करा था वो गामा में डाल दिया। मैं एडिट प्रॉम्प्ट बटन दबाता हूँ एंड सी द मैजिक। तो मैं 10 कार्ड की पीपीटी जनरेट करना चाहता हूँ बिकॉज मेरा फ्री प्लान है। मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ, बिकॉज मेरा फ्री प्लान है, मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ। और मैंने अभी तक कुछ पढ़ा भी नहीं है कि मैंने क्या लिखा था, सिर्फ प्रॉम्प्ट डाला मैंने और मेरी पीपीटी आपके सामने तैयार है। ये आप कभी भी अपने बॉस को 3 मिनट में दिखा सकते हो, दुनिया के किसी भी टॉपिक। आपका बस प्रॉम्प्ट करेक्ट होना चाहिए और ये सारे फ्री टूल्स हैं, मेरे पास कोई पेड एक्सेस नहीं है। ठीक है, मेरे 10 स्लाइड की पीपीटी बन गई है और मैं इससे हाइड करता हूँ। मेरी पीपीटी तैयार है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ एक्सपोर्ट का बटन दबा के पावर पॉइंट में। ठीक है, डाउनलोड हो रही है, एक बार डाउनलोड हो जाए तो मैं आपको बोल के दिखाता हूँ अपने लोकल सिस्टम पे।
ठीक है, आपके सामने मैंने पीपीटी जनरेट करी है और मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। भाई ने क्वेश्चन पूछा था एआई कैसे करेगा आईटी जॉब्स को 2025 में, उसने मेरे को पूरी पीपीटी बना के दे दी है। कितने लोग माइंड ब्लोन है इससे? सही है, कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। अगर मैं आपको पीपीटी बनाने को देता कितना टाइम लेते हैं आप मेरे से, अगर मैं आपका मैनेजर हूँ तो? 1 दिन, 2 दिन, आधा घंटा तो लेते, इससे जल्दी नहीं बना सकते। अब एक दिक्कत है, दिक्कत क्या आ रही है इस पीपीटी में, कोई बता सकता है? मेड विद गामा आ रहा है, वेरी गुड पॉइंट यार, यहाँ मेड विद गामा का एक चीज आ रही है, तो आपके बॉस को पता लग जाएगा यही से बनी। ठीक है, इसका भी जुगाड़ है। चलो इसका जुगाड़ देखते हैं। स्लाइड मास्टर आता है व्यू में ऑप्शन, ठीक है, यहां से जाके इसको डिलीट कर देते हैं सारी स्लाइड से। थोड़ा सा मैनुअल काम है, चलो मैं आपको इतने पे करके दिखा देता हूँ। क्लोज मास्टर व्यू करते हैं, मेरा मेड विद गामा उड़ गया। अब बताओ आपका बॉस बता पाएगा यही से बनी है ये? आप बिल्कुल पोस्ट कर सकते हो जी मैंने बनाई है, आप निकालो क्या उखाड़ लोगे, मेरा सब कुछ पता है मेरे को, पूरा डाटा आता है मेरे को, मैंने पूरा डाटा 2 दिन में पूरा जांच पीट के निकाला है और ये मैंने बनाई हुई पीपीटी है। आपको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, एक बार ये पीपीटी पढ़ लेता बस। ठीक है, इजी है, हर कोई पीपीटी बना सकता है, प्रॉम्प्ट भी जनरेट कर सकता है, काम इजी हो गया, स्पेशली दोज हु आर इन सेल्स एंड मार्केटिंग। अरुण आपको कहते हैं यार एक अच्छी प्रेजेंटेशन बना के लाओ तभी मैं आपको जॉब दूंगा, सेल्स फोर्स पे बना के लाओ, सेल्स फोर्स पे आजकल क्या चल रहा है, कितनी देर में बना पाओगे? मैं तो 2 मिनट बता दूंगा, मुझे सेल्स फोर्स का ऐसे भी नहीं पता, मुझे ये नहीं पता सेल्स फोर्स होता क्या, जो आप बता रहे थे पहले वो सेल्स फोर्स ठीक है, पर मैं आपसे अच्छी पीपीटी बता दूंगा। ऑल गुड, एंजॉयिंग, मजा आ रहा है? लिंक्डइन सब यूज करते हैं? कॉल्स आती है लिंक्डइन से? क्यों नहीं आती? मेरे को तो बहुत आती है। ओपन टू वर्क डालने के बाद तो आती होगी, नहीं आती? क्यों नहीं आ रही? आपकी प्रोफाइल पे और जैसे कॉल आ रही है उसकी प्रोफाइल पे क्या दिक्कत है? या तो वो बहुत अच्छा, उसके पास क्या आईआईटी की डिग्री तो होगी नहीं, या चलो है भी तब भी क्या पता आईआईटी वालों को कॉल नहीं आती। क्यों आ रही है लोगों को कॉल, आपको क्यों नहीं आ रही? आना चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। जॉब स्विच करना है तो लोग कहते हैं यार लिंक्डइन से अच्छी चीज नहीं है, मैंने आज तक 6 जॉब स्विच करी है, मेरे को लिंक्डइन से ही सारी कॉल्स आई, नौकरी मैं यूज भी नहीं करता। आप लोगों को लिंक्डइन से कॉल्स क्यों नहीं आ रही? चलो कोई भी एक बंदा आओ और अपने लिंक्डइन प्रोफाइल खोलो, ये मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल है, आई एम इनवाइटिंग एनीवन, कोई भी आओ अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल खोलो, आओ प्लीज, यहाँ पे आप सर्च करो अपना नाम और अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल खोलो। नहीं मैं लॉगिन नहीं करवा रहा यार, मैं अपनी प्रोफाइल से करवा रहा हूँ। आप टॉप रिजल्ट्स में भी नहीं आ रहा भाई, क्यों नहीं आ रहा टॉप रिजल्ट्स में? ऐसी होने लगा रखा है इसने, आना चाहिए था ना, अच्छा लगेगा अगर मयंक सक्सेना टाइप करो सबसे पहला रिजल्ट मयंक सक्सेना आए। चलो आ गया, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मोर, सबने देखा पर किसी ने यूज नहीं करा होगा, किसी ने खोल के भी देखा होगा। मैं बताऊंगा शिवम की प्रोफाइल पे दिक्कत क्या है। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजर नाम की एक चीज आती है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैंने शिवम की फाइल डाउनलोड करी थी, मैं यहाँ से ऐड फोटोज एंड फाइल्स पे जाऊंगा, अपने डाउनलोड्स पे जाऊंगा, ये शिवम की प्रोफाइल है, मैंने बस ओपन कर दी, चलो प्रोफाइल अपलोड हो गई। मैं कुछ नहीं करूंगा, एंटर मारता हूँ, मुझे पता भी नहीं किसकी प्रोफाइल है, उसने दे दिया शिवम दीक्षित की प्रोफाइल है, ये है भाई, उसने कैदर करा आपके लिए इन्फॉर्मेशन। तो शिवम जी आप ध्यान से देखो आपकी दिक्कत क्या है। चलो वो कह रहा है बिफोर आई ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन प्रोफाइल इनटू अ सर्च फ्रेंडली रिक्रूटर अट्रैक्टिव वर्जन आई नीड टू क्लैरिफाई अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम यू। तो शिवम मैं आपसे खुद ही आगे इनवाइट करूंगा, आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे दो, आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो जाएगी। आओ यहाँ पे वन दबाते हैं, वन में ऑप्शन दे रहा है आपको क्या क्या चाहिए। आप अपने आप को सेल्स फोर्स डेवलपर इंजीनियर प्रेजेंट करना चाहते हो या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर करना चाहते हो, लिखो लिखो टाइप करो। अरे जनरेटिव है ना, वो ले लेगा ना।
अपने आप ले लेगा? हाँ जनरेटिव उसने आपसे क्वेश्चन पूछा है भाई। तो वन तो उसमें एक ही चीज है ना, हाँ जो वन दे रखा है वो जनरेटिव है ना, सर, वन पे उसने क्वेश्चन पूछा था। तो वन का आंसर देगा। अब वन का आंसर तो आपको देना है ना, आप कैसी प्रोफाइल चाहते हो। चलो आप फिर से आंसर दो। यहाँ पे उसने क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, कुछ दिख रहे हैं आपको क्वेश्चन? ठीक है हाँ। चलो मैं दे देता हूँ आपके लिए आंसर। ये लो, आपकी सेल्सफोर्स की प्रोफाइल बनानी है। डेवलपर का बनाना है। डेवलपर ही बना देंगे जी, कर देते हैं। एक सेकंड, डेवलपर लिख दे, डेवलपर लिख दे। तीसरा क्वेश्चन, फॉर्मल रिक्रूटर फ्रेंडली रखनी है या पर्सनल एंगेज रखनी है? नहीं फॉर्मल रिक्रूटर फ्रेंडली रखते हैं, ठीक है। सेकंड में डाल दीजिए। थर्ड क्वेश्चन है वो, ठीक है। आपने तीनों क्वेश्चन का आंसर दे दिया, एंटर मारते हैं। चलो आप, उसने बता दिया आपके लिंक्डइन प्रोफाइल की हेडलाइन क्या होनी चाहिए, समरी क्या होनी चाहिए, आपकी की हाइलाइट्स क्या होनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस क्या आना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए, और आपके स्किल्स आप रिक्रूटर को कैसे दिखाओगे, आपका बैनर क्या होना चाहिए, और आपके फीचर रिकमेंडेशन क्या होने चाहिए। आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल से ऑप्टिमाइज कर दी। एटीएस रिज्यूम होता है, किसी सुना? क्या होता है एटीएस? आजकल एक एटीएस सॉफ्टवेयर है जो आपके रिज्यूम का स्कोर बताता है कि कितना रिक्रूटर फ्रेंडली है, ठीक है। तो डाउनलोड कैसे किया? डाउनलोड कैसे किया था? मोड पे जाके वो लैपटॉप में फीचर आता है, मोबाइल हाँ, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ मैंने डाउनलोड कैसे करा। मैं किसी की भी प्रोफाइल पे जाऊंगा, यहाँ पे मोर का ऑप्शन आ रहा है, आपको मोर पे क्लिक करके सिर्फ सेव टू पीडीएफ करना है, और जो मैंने आपको प्रॉम्प्ट दिया उस पर डालो, आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो जाएगी। अब जो उसने आंसर्स दिए हैं यहाँ, वो यहाँ से कॉपी पेस्ट करके डाल दो। जैसे अगर मैं देखूँ, शिवम ने अपनी ये डाला हुआ है, ठीक है। तो शिवम अगर बैनर ये डाले, ऐसा चैट जीपीटी कह रहा है, तो आपको बेटर ऑप्शंस मिलेंगे। आप अपनी हेडलाइन जो डालो वो ये डालो, आपकी हेडलाइन जो आ रही है वो सिर्फ 2 शब्द की आ रही है, आप ये डालो तो आपको बेटर चीजें मिलेगी, ठीक है। तो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल कॉपी पेस्ट से, एक प्रॉम्प्ट से बहुत ऑप्टिमाइज हो जाएगी, एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको कॉल्स आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये जो आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइजर है, ये पेड वर्जन है? नहीं, ये सारे फ्री वर्जन दिखा रहा हूँ मैं आपको, कोई पेड, ऑल फ्री, और मैं आपको दे भी दूंगा तो आप चिल लो, ठीक है। किसी को नोट करने की या फोटो की नहीं कोई जरूरत। लिंक्डइन पे कौन रोज एक अच्छी पोस्ट डालना चाहता है? आप डालना चाहते हो, ठीक है। किसी ने रिसेंटली सुना है ओपन एआई अपना दिल्ली में ऑफिस ओपन कर रहा है? ओपन एआई पेरेंट कंपनी है चैट जीपीटी। अगर ओपन एआई इंडिया में ऑफिस ओपन कर रहा है तो कम से कम 18,000 जॉब जनरेट करेगा वो, 18,000। और आप लोग चाहोगे कि आप उन 18,000 में से एक हो? मैं तो चाहता हूँ, ठीक है। तो लिंक्डइन पे अच्छी पोस्ट डाल के क्या होता है, यहाँ आप कितने लोग हैं इनके 5,000 से ऊपर इंटरेक्शन है लिंक्डइन। कैसे बनाए? किसी को आंख बंद करके कनेक्ट, यही करते हैं, आंख बंद करके कनेक्ट कर दो जी, लोग तो एक्सेप्ट कर ही लेंगे। अगर आप दिन के 100 कनेक्ट भेज रहे हो, कितने एक्सेप्ट होते हैं ऑन एन एवरेज? 100 के 100 क्यों नहीं होते? अगर आप में से किसी का प्रीमियम वर्जन है तो उसका एक ऑप्शन आता होगा सेंड विद अ नोट और सेंड विदाउट अ नोट, आता है? कितने लोग सेंड विदाउट अ नोट पे क्लिक कर देते हैं, आंख बंद करके कौन लिखेगा, मेरे को क्या फायदा है, सेंड नोट क्यों भेजूंगा। सब लोग सेंड विदाउट अ नोट करते हैं। जब आप सेंड विदाउट अ नोट करते हो तो 100 में से 50 लोग आपका कनेक्शन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्पेशली इफ दे आर एट अ वेरी गुड पोजीशन इन द आईटी इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी कंपनी के वीपी को भेज रहे हो और आप एक फ्रेशर हो, आपने डायरेक्ट कनेक्ट भेज दिया तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उससे कोई मतलब नहीं है आपसे, आप उसके लिए एग्जिस्ट भी नहीं करते। उसके पास ऐसे 200 रिक्वेस्ट आ रही है, वो आपकी तरह आंख बंद करके एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो आपकी प्रोफाइल देखेगा, अगर आपने कुछ मेंशन नहीं कर रखा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है।
तो एक अच्छी लिंक्डइन पोस्ट कैसे बना सकते हैं? कोई भी टॉपिक जिस पे कोई लिंक्डइन पोस्ट बनाना चाहता हो। आज के सेशन की, आज का सेशन क्या है, मतलब चंदन भाई क्या सेशन है आज का? इम्पैक्ट ऑफ MuleSoft। चलो चलो, मेरे पास एक और प्रॉम्प्ट है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ नहीं करेगा, या सीधा लिंक्डइन पोस्ट जनरेट कर देगा। हम लिखते हैं इम्पैक्ट ऑफ MuleSoft ऑन सेल्सफोर्स, ये लिखना ना। चलो मैंने आपके सामने कुछ नहीं लिखा, उसने लिंक्डइन पोस्ट दे दी। बढ़िया। चलो अभी आप थोड़ी सी और अच्छी बनाते हैं इसे। मैंने पढ़ी भी नहीं है लिंक्डइन पोस्ट क्या है, मुझे मतलब भी नहीं है। वो कह रहा है काम करो यार, लिंक्डइन पोस्ट के साथ ना इमेज भी अच्छी लगेगी, तो उसने इमेज का प्रॉम्प्ट दे दिया मुझे ऑटोमेटिकली। इमेज जनरेट करता है अच्छी चीज। चलो चैट जीपीटी इस पोस्ट के लिए इमेज जनरेट कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। तब तक हम पोस्ट पढ़ लेते हैं उसने MuleSoft से रिलेटेड क्या पोस्ट डाली है। ठीक है, ये आपकी लिंक्डइन पोस्ट बना दी है उसने हार्डली 3 सेकंड में। मुझे पता भी नहीं है MuleSoft होता क्या है या सेल्सफोर्स क्या होता है, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता। पर मेरे लिए बहुत अच्छी पोस्ट है, क्योंकि मुझे पता है इस पे लोग रिप्लाई करेंगे, आंसर करेंगे, अच्छी बात है। ठीक है, इमेज जनरेट कर रहा है वो, इमेज देखते हैं कैसी जनरेट होती है। अभी तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत? अभी तक तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कॉपी पेस्ट ही करना। तो शिवम भाई कल से कॉल्स आ जाएंगे, तो मुझे पार्टी चाहिए, जॉब लग जाए तो। चलो ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ दारूगा थोड़ा सा नेट स्लो है, नहीं तो अभी तक जनरेट हो जानी चाहिए थी। चलो हो गई ये इमेज जनरेट। ठीक है, ये इमेज मेरे को बनानी होती कितना टाइम लग जाता। मैं मतलब मेरी अच्छी अच्छी ड्राइंग भी नहीं है, डिजाइनिंग भी नहीं है, मैं तो नहीं बना पाता। कुछ नहीं करना, इमेज को डाउनलोड करना, लिंक्डइन पे पोस्ट डाल देना, कॉपी पेस्ट कर देना, लोगों को लगेगा आप ही MuleSoft और सेल्सफोर्स भगवान। ठीक है, चलो लिंक्डइन पोस्ट पे एक चीज मिसिंग है। क्या मिसिंग है, कोई बता सकता है? आजकल बहुत चलते हैं, जो इंस्टाग्राम यूज करते हैं, हैशटैग्स। हैशटैग भी डाल देते हैं। चलो उसने पोस्ट ही अपडेट कर दी, वो कह रहा हैशटैग भी ले लो मेरे से, ये लो हैशटैग्स आ गया, इमेज आ गई, पोस्ट आ गई, हैशटैग भी आ गए, पोस्ट कर दोगे। ठीक है, इतना तो कर सकते हो। तो अब लोग प्रॉमिस कर सकते हो कि लिंक्डइन पे रोज एक पोस्ट डाला करोगे। इससे क्या होगा, लिंक्डइन पे रोज एक पोस्ट डालने से क्या होगा? आपको देखा होगा कि कुछ कनेक्शन रोज एक लिंक्डइन पे पोस्ट डालते होंगे, क्या होता है उससे? जिस इंडस्ट्री में हम काम करते हैं ना, इट इज ऑल अबाउट कनेक्शंस। जब आप मेरे या अरुण के एक्सपीरियंस लेवल पे आ जाओगे ना, तो आपको इंटरव्यू कॉल्स आनी बहुत कम हो जाएंगी, बहुत कम। स्पेशली 8+ एक्सपीरियंस पे इंटरव्यू कॉल्स नहीं आती हैं अगर आपके कनेक्शंस ना हो। मोस्टली जॉब जो होते हैं रेफरल से होते हैं। अगर आपको अपने रेफरल्स बनाने हैं, यू नीड टू इंक्रीज योर लिंक्डइन कनेक्शंस। लिंक्डइन कनेक्शन कैसे इंप्रूव होंगे? मैं एक एआई एंथुसियास्ट हूँ, मैं एआई ट्रेनर हूँ, मेरे जैसे दुनिया में लाखों होंगे, मुझे उनके साथ कनेक्ट करना है। जब वो मेरी एआई की रोज एक पोस्ट देखते होंगे ना, तो सोचते हैं यार ये बंदा रेगुलरली पोस्ट कर रहा है, तो इससे हमें कनेक्ट करना चाहिए, हम इससे कुछ सीखेंगे, मैं उनसे कुछ सीखूंगा। ठीक है, अगर मैं आपको ये प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ तो मेक श्योर दैट यू आर प्रॉमिसिंग मी कि आप आज से रोज एक लिंक्डइन पोस्ट डालोगे। कितना टाइम लगेगा लिंक्डइन पोस्ट डालने में? 2 मिनट, 2 मिनट से भी कम अच्छी पोस्ट डल जाएगी। रोज एक टॉपिक सोचो, ठीक है, और एक लिंक्डइन पोस्ट डाल देना। टॉपिक नहीं आ रहा ना, एक एआई की वेबसाइट है, लेटेस्ट एआई न्यूज इन द इंडस्ट्री,
उस पर एक न्यूज आती है, उसको कॉपी करना, यहाँ डालना, लिंक्डइन की पोस्ट बना के दे देगा। देखो बहुत लोग हंस रहे हैं, पर आपके करियर में बहुत इम्पैक्ट करेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चलो, लिंक्डइन में पोस्ट कोई अच्छी लगती है, कमेंट करना अच्छा लगता है, पर समझ नहीं आता है क्या कमेंट करूं। सजेशंस आते हैं। चलो मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखाता हूं और आपकी प्रोफाइल दिखाता हूं, देखते हैं सजेशन सेम आते हैं, ठीक है। ये मेरी प्रोफाइल है, एंजेलिना मैडम ने कुछ डाला हुआ है, मुझे मुझे नहीं पढ़ना है क्या डाला हुआ है, पर मुझे ऐसी पोस्ट अच्छी लग रही है। आप पे सजेशन आ रहे हैं, आप पे आते होंगे गुड, कॉन्ग्रेट्स, थैंक यू, ऐसे आते होंगे ना। चलो मैंने पोस्ट पढ़ी नहीं है आपके सामने, मुझे इसका पॉजिटिव रिप्लाई करना है। ठीक है, मैंने पढ़ी भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं पोस्ट में क्या लिखा है, मैंने कमेंट कर दी थी। ठीक है, बढ़िया। वो बंदी खुश हो गई यार, इस बंदे ने पढ़ा होगा, इतना दिमाग लगा के उसने कमेंट करा है। ठीक है, मैं इसका पॉजिटिव रिप्लाई भी कर सकता हूं, मैं इसका थॉटफुल रिप्लाई भी कर सकता हूं, मैं इसके क्यूरियस रिप्लाई, नेगेटिव रिप्लाई कुछ भी कर सकता हूं बिना पढ़े पोस्ट को। ठीक है, अच्छी चीज है। आपकी प्रोफाइल में क्यों नहीं आ रही? चलो मैं प्रीमियम आदमी हूँ, ये भी हो सकता है फ्री वालों में भी आती है। इसके लिए क्रोम का एक्सटेंशन है, क्रोम एक्सटेंशन पता है सबको क्या होते हैं? मर्लिन का नाम सुना किसी ने? मर्लिन, चलो सुनाता हूँ। ये रहा, ये मेरे लिंक्डइन पे पड़ा हुआ है, मेरा ब्राउजर है, क्रोम एक्सटेंशन में पड़ा हुआ है मर्लिन। ये सारा काम मर्लिन कर रहा है, मैंने कुछ भी नहीं करा। किसी भी पोस्ट पे जाकर कमेंट कर पाओगे? क्रोम एक्सटेंशन पता है ऐड कैसे होते हैं? पता नहीं? पता, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाना, क्रोम वेब स्टोर पे, मेरे लिए ऑलरेडी एडेड है तो मेरे लिए रिमूव का ऑप्शन आ रहा है। आप पे नहीं होगा तो ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आएगा। ऐड टू क्रोम करना, ब्राउजर किल करके फिर से खोलना, लिंक्डइन पर लॉग इन करना, सारे सजेशंस आने लगेंगे। बिना पढ़े दुनिया की किसी भी पोस्ट पे ऐसा रिप्लाई कर सकते हो कि जो बंदा होगा ना खुश हो जाएगा, आपसे जरूर कनेक्ट करेगा वो। और हो सकता है वो मैनुअली रिप्लाई करे आपकी पोस्ट का, आप एआई के थ्रू कर दोगे। इजी है। अभी तक किसी को कोई दिक्कत? सब बढ़िया चल रहा? लिंक्डइन पे सबसे पहली चीज क्या देखी जाती है? रिक्रूटर क्या देखता है सबसे पहली चीज? यहाँ कोई एचआर है? चलो आप, हाँ बताइए मैम। हाय एवरीवन। तो सबसे पहले देखते हैं कि उसका कितना एक्सपीरियंस है, जो भी मैंने पोस्ट डाली है उससे रिलेटेड जो भी मैंने कीवर्ड्स डाले हैं वो सारे वो फुलफिल करता है कि नहीं करता, और उसे कितना एक्सपीरियंस है, फिर वो उसे कनेक्ट करता है। अगर वो सही करता है तो आगे। चलो, मैम की बात से कितने लोग सहमत हैं? हाथ खड़ा करो जो लोग मैम से एग्री करते हैं। आप ही बोल दो, जो जो आपसे एग्री करते हैं हाथ खड़ा कर लो। यस, कोई अग्री है? नहीं है? रेज हैंड। जो एग्री है वो हाथ खड़ा करे, डिसएग्री है हाथ नीचे रखे रहे। सारे डिसएग्री तो नहीं, एग्री हैं, जो 2-3 लोग एग्री है, एग्री है। जो लोग डिसएग्री है उनका क्या ओपिनियन है? सबसे पहली चीज रिक्रूटर क्या देखता है? आप क्या देखोगे इस लिंक्डइन प्रोफाइल में सबसे पहली चीज? चलो हिंट दे देता हूँ, इंस्टाग्राम वालों, जेनजी जनरेशन में सबसे पहले लड़की को रिक्वेस्ट भेजी होगी, लड़की क्या देखोगे? फोटो देखोगे ना, प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। लिंक्डइन पे इंस्टा की प्रोफाइल पिक्चर तो नहीं लगा देते ना? लगा देते हैं, बहुत लोग लगाते हैं, बहुत लोग। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, लिंक्डइन पे वो एकदम डूड बन के खड़े हो जाते हैं,
चश्मा वश्मा लगा के जीन्स पहन के, बहुत गलत इंप्रेशन है वो। ठीक है, आप अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल सबसे पहले आपकी कोई ना कोई सब कोई प्रोफाइल पिक्चर देखता है, आप कितने सीरियस हो अपनी जॉब के लिए। अगर आप वहां डूड बन के चश्मा लगा के हीरो बन के खड़े हो तो दैट इज अ नेगेटिव थिंग फॉर अ रिक्रूटर कि आप सीरियस नहीं हो। आप बड़े से बड़े आदमी को देखो, अरुण की प्रोफाइल खोलते हैं, अरुण ने कैसी प्रोफाइल पिक्चर लगा रखी है। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। चलो, ये अरुण की प्रोफाइल पिक्चर है। अब रिक्रूटर इसको सबसे पहली बार देखेगा तो लगेगा हाँ यार लीडर आदमी है, कोट वोट पहन के खड़ा है। अब अरुण यहाँ अपनी इंस्टा की प्रोफाइल पिक्चर लगा दे, जो मैं बता देता हूँ, अरुण एक बाइक पे बैठा हुआ है, चश्मा लगाया हुआ है, एकदम कूल टूल लग रहा है। वो अगर लगा दे तो मैम आप ही रिक्रूटर हो तो आप क्या करोगे? कहाँ से लीडर लग रहा है यार, ये फेक एक्सपीरियंस है। 15 साल में अगर प्रोफाइल पिक्चर लगानी नहीं आई तो क्या सीखा होगा? मैम के साथ बहुत हुआ है। तो सबसे पहली चीज, अगर इंस्टाग्राम पे अरुण ये पिक्चर लगाएगा ना तो लोग उसे टोंट मारेंगे, यार सोशल प्लेटफॉर्म है, फन प्लेटफॉर्म है, क्यों पिक्चर लगा रहा है। लिंक्डइन पे लगाएगा तो अच्छी बात है। यहाँ पे कितने लोग अपनी प्रोफाइल पिक्चर देख रहे हैं या याद कर रहे हैं लिंक्डइन पे मैंने अच्छी लगा रखी है, बेकार लगा रखी है। इंस्टाग्राम लगा रखी है, अच्छी लगा रखी है, बिल्कुल सूट वूट पहन के शादी का। तो वापस एक बार पीपीटी पे आते हैं। तो मैंने आपको प्रॉम्प्ट जनरेटर बता दिया, ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल बता दी, लिंक्डइन कंटेंट पोस्टिंग बता दी, मर्लिन बता दिया, गामा मैंने आपको बता दिया। नैप गामा तो बहुत लोगों ने सुना होगा, नैपकिन किसने सुना है? सुना नैपकिन? कैनवा, कैनवा का तो ऐड भी आ रहा है आजकल टीवी पे। एक पापा अपनी बेटी से कुछ कह रहा है, कैनवा से वो कुछ बना रही है। तो जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सारे कैनवा का यूज कर रहे हैं, और कैनवा फ्री है, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, कैनवा भी दिखाता हूँ। लिंक्डइन प्रोफाइल पिक्चर, भाई की अच्छी फोटो लग रही है, लग रहा प्रोफेशनल, उसकी शक्ल ही ऐसी, ऐसे मत बोलो यार। ठीक है, अच्छा लग रहा। चलो, ये एक पाइथन स्क्रिप्ट है जिससे आपकी प्रोफाइल पिक्चर बढ़िया हो जाएगी, लगेगी कि हाँ यार आप भी आईटी इंडस्ट्री में काम करते हो। अब मेरा ऐसा हुलिया है तो ऐसा हुलिया तो प्रोफाइल पिक्चर लगा दूंगा तो रिक्रूटर में कॉल ही नहीं करेगा। तो मैंने भी सब पे फोटो लगा रखी है, भले ही चाहे इंटरव्यू देने जाऊँ तो बाल वाल कटवा लूँ, दाढ़ी वाड़ी कटवा लूँ, पर अभी के लिए प्रोफाइल पिक्चर अच्छी लगा रखी है। चलो, इस लिंक को कॉपी करते हैं। बस आधा 2 मिनट नहीं, 2 मिनट चाहिए मुझे। पाइथन किसी को आती है? पाइथन नाम सुना है, लैंग्वेज है पाइथन। कुछ नहीं करना, ये मैंने आपको दे दिया है, यहाँ जाके ना ये बटन दबा देना, रन होगा ये। 2 मिनट लगेंगे इसमें रन होने में, तब तक हम टाइम की शॉर्टेज के लिए नैपकिन देख लेते हैं। मैं नैपकिन बोलता हूँ। नैपकिन क्या करता है? नैपकिन किसी भी चीज की इमेज बना देता है। बताओ किस चीज की इमेज बनानी है? अभी डॉग्स भागे, डॉग्स को इंसाफ मिल गया ना सुप्रीम कोर्ट से, उस चीज की इमेज बना।
बेल कर देते हैं डॉग्स को। अभी मेरा नैपकिन चल नहीं रहा है तो मैंने परप्लेक्सिटी का यूज करा है। देखते हैं परप्लेक्सिटी कैसी इमेज बनाता है। अच्छा, जितने अभी हम एलएलएम्स पढ़ रहे हैं, कोई इंडियन एलएलएम है? किसी ने आज तक इंडियन, कोई इंडिया का है एलएलएम? कोई पता है आपको इंडिया ने जो बनाया हो? परप्लेक्सिटी का सीईओ इंडियन है, पर इंडिया का नहीं है वो प्रोडक्ट, यूएस का प्रोडक्ट है। सीईओ इंडियन है। डीप सीक का नाम सुना किसी ने? क्यों यूज नहीं करते हम डीप सीक? चाइना का है। ये बहुत गंदी चीज है कि चाइना का है तो यूज नहीं करेंगे। इस समय वन ऑफ द टॉप मोस्ट एलएलएम्स है डीप सीक। बढ़िया इमेज बना दी उसने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कुत्ते बाहर निकल रहे हैं इंसाफ लेके। ठीक है, नैपकिन भी यही काम करता है, पर नैपकिन अभी कर नहीं पा रहा। ये इमेजेस आप अपने पीपीटी में लगा सकते हो। ठीक है, यहां अगर कोई हार्डकोर कोडर है उसके लिए एलएलएम है क्लॉड। आपको दिखा देता हूं। इससे बढ़िया टूल नहीं है अगर आपको कोड करना है तो। अगर आप सेल्सफोर्स कोडर हो, जावा कोडर हो, पाइथन कोडर हो, एक्सवाईजी कोई भी कोडर हो, ये आपका पूरा फ्रेमवर्क बना देगा 1 घंटे के अंदर किसी भी एप्लीकेशन। दैट आई कैन गारंटी। प्रॉम्प्ट सही होना चाहिए। इस समय नंबर 1 एलएलएम चल रहा है मार्केट में, और यही रीजन है जो टीसीएस के 12,000 लोगों की जॉब गई। तो इस अगर ये एलएलएम सीख लोगे तो सबसे बढ़िया चीज है। अगर ये एलएलएम आपके यहाँ नहीं चलता है, प्रोहिबिटेड है, तो अगला एलएलएम आता है ग्रॉक। नाम सुना? ट्विटर का है, आजकल एक्स कहते हैं ट्विटर को। ग्रॉक बहुत अच्छा चीज है। किसी को पॉडकास्ट बनानी है अपनी, पॉडकास्ट बनाना चाहता हो कोई, चंदन भाई अभी सेशन देंगे, चंदन भाई की पॉडकास्ट बना दें। कितना मिनट लगता है पॉडकास्ट बनाने में? कैमरे वाले भैया चाहिए, 3-4 जगह कैमरे चाहिए, सेटअप करना पड़ता है। वो मशीन आती है पॉडकास्ट के लिए, काफी एक्सपेंसिव सेटअप है, 1-1.5 लाख रुपए तो लग जाते होंगे। मैं आपको फ्री में बना के दूंगा 2.5 मिनट के अंदर। एलएलएम का नाम है, अगर आप में से किसी ने सुना हो, बस इसके लिए अच्छी बात है, इसलिए जाइए। Right, please enjoy your snacks. We'll continue this after the session. Okay, after the snacks, we will complete and we will talk 30-40 minutes. Let's enjoy the snacks. And then we'll go. Okay, thank you so much. तो सेट विद नोट भेजा करो। चलो मैं किसी को इनवाइट भेजता हूँ एंड सी मेरे पे क्या क्या ऑप्शंस आते हैं।
ये कोई है बंदा नारायण मूर्ति, मैं इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ। सब पे यहाँ से ऑप्शन आता है और सब क्या करते हैं, सेंड विदाउट अ नोट। मैक्सिमम लोग यही कर देते हैं। ऐड नोट करते हैं, ठीक है। ऐड नोट में अगेन मेरे पास मर्लिन से कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। मैं उससे पूछना चाहता हूँ जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में या एडवाइस लेना चाहता हूँ। मैं रिक्वेस्ट फॉर एडवाइस करता हूँ। ठीक है, एक सिंपल सी बात है, आप उसको अगर दिखाओगे कि आप उसे जेन्युइनली कनेक्ट करना चाहते हो तो आपसे कनेक्ट करेगा। ठीक है, मैं उसे जानता भी नहीं हूँ, बट मैंने एक लाइन लिख दी, ऑब्वियसली मैंने लिखी, मर्लिन ने लिखी और मैंने उसे सेंड कर दिया। अब ये मेरा एक्सेप्ट करेगा कनेक्शन, इसकी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है एज कम्पेयर टू जब मैं विदाउट नोट भी। ठीक है, नेक्स्ट एक प्रोफाइल पिक्चर का मैंने आपको बोला था, तो एक सेकंड देखते हैं ये हुआ है क्या। मैं पाइथन स्क्रिप्ट रन करी थी, अगर कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि उनके चैट जीपीटी में लिंक्डइन ऑप्टिमाइजर या ये चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो गाइस वो डायरेक्टली नहीं आएंगी, वो मैंने क्रिएट करे हुए हैं, उसके पीछे काफ़ी कोडिंग है। मैं आप लोगों को डायरेक्टली लिंक्स दे दूंगा, आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके चैट जीपीटी में ऑलरेडी ऐड हो जाएगी, ऐसे ऑटोमेटिकली नहीं आएंगी। तो यहाँ पे पाइथन स्क्रिप्ट से एक चीज़ खुली है, कोई मुझे अपनी इमेज देना चाहेगा, कोई फोटो, इंस्टाग्राम की फोटो, बढ़िया सी फोटो को देना चाहेगा? कोई नहीं देना चाहेगा, दे दो यार। लिंक्डइन से आपकी फोटो कॉपी पेस्ट कर लेना, बताओ किसकी प्रोफाइल खोलें? निखिल कुमार चौबे। CHOUBEY। भाई एक ही आ रहे हो, यूनिक आते हो तुम। ये भाई साहब है, यही आप ही हो? चलो, तो एक बार देखते हैं ये काम करती है पाइथन स्क्रिप्ट या नहीं करती। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, इमेज जनरेट कर रहा है, तब तक मैं आपको नोटबुक दिखा देता हूँ। नोटबुक एक LLM है, गूगल से आता है, ये काफ़ी अंडररेटेड है, बट अगर आपको कोई रिपोर्ट बनानी हो, पॉडकास्ट बनानी हो, बहुत अच्छी चीज़ है ये। क्रिएट न्यू, ऑब्वियसली मेरा ऑलरेडी लॉग इन है तो आप गूगल से लॉग इन कर सकते हो। क्रिएट न्यू करूँगा मैं। चलो एक इसमें और चीज़ दिखा देता हूँ, किसी को यूट्यूब वीडियो बहुत पसंद है, उससे रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, यूट्यूब खोलते हैं,
किस टॉपिक पे रिपोर्ट बनानी है? यूट्यूब से, वीडियो से, बताओ किस पे बताओ। लाइफ स्टाइल, मुझे आवाज नहीं समझ में आया मुझे। आप आगे टाइप कर दो भाई। अरे बता दो जो यूट्यूब पे क्या डालू। ध्रुव राठी कौन है भाई? चलो ये ध्रुव राठी का ये आर्टिकल है कोई सिंकिंग आइलैंड का, इसका यूट्यूब का लिंक कॉपी करते हैं। मुझे पता भी नहीं है वैसे ये कौन है भाई। अपलोड अ सोर्स पे जाते हैं, इस पे यूट्यूब का एक लिंक आता है। मैं यहाँ से यूट्यूब का लिंक बस मैंने पेस्ट कर दिया है और ये यहाँ अपलोड हो गया है। नोटबुक के साथ सबसे अच्छी बात ये है कि आप यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज ऐड कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो कितनी भी सोर्सेज ऐड कर सकता हूँ। गूगल डॉक ऐड कर सकता हूँ, स्लाइड, वेबसाइट, यूट्यूब, कॉपी टेक्स्ट कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। उसके अकॉर्डिंग उन सबका डाटा देके वो मेरे को ये रिपोर्ट जनरेट कर देगा। कर दी उसने रिपोर्ट जनरेट। मुझे पता नहीं ध्रुव राठी भाई कौन है ना, उसने वीडियो में क्या लिखा है, पर उसके लिए उसने दे दी है। ठीक है, मैं इसका ऑडियो जनरेट कर रहा हूँ। ये इसका बीटा वर्जन है, देखते हैं चलता है कि नहीं। ये तो एक पॉडकास्ट जनरेट कर देगा आपके लिए। तब तक देखते हैं आपकी फोटो जनरेट हुई कि नहीं। ये अभी अभी ढंग से काम कर नहीं रहा है। मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। अरुण भाई को ज्यादा स्मार्ट कर दिया इसने। एक मिनट वेट कर लेते हैं इसके ऑडियो जनरेट होने का। अभी तक किसी को कोई इशू, कोई डाउट्स रिगार्डिंग एआई? अगर आपको एआई का पूरा कोर्स करना है तो आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। दिस इज जस्ट दी ओवरव्यू। मैं एआई में पावर बीआई, एक्सेल, जो आप सोच सकते हो, पाइथन वाइथन सब पढ़ाता हूँ।